हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? We have seen asexual reproduction in first lecture. In that we have seen different modes of asexual reproduction in lower plants. Now in section 2 or lecture 2, second lecture में section 2 में हम लोग क्या देखेंगे? Vegetative reproduction in higher plants. Higher plants में vegetative reproduction कैसे होता है और vegetative production in plants, this is the second lecture of the series. So in this, what is vegetative reproduction? The definition of vegetative production, then types of vegetative reproduction, natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. So in this definition, types and natural and artificial vegetative propagation, these are the topics for today's discussion. Okay? Now we'll see the definition first. What is the definition of vegetative propagation or vegetative reproduction? So vegetative propagation is a form of asexual reproduction. ये क्या है? Asexual reproduction का form है. So form of asexual reproduction in plants where new plants are produced from vegetative parts like stem, root and leaves. नए plants तैयार किए जाते हैं from vegetative parts like stem, root and leaves. Leaves, roots and stem इसको use करके we can make new plants out of this stem, root and leaves, and that's what is called asexual mode of reproduction in plants. This method results in offspring that are genetically identical. ये क्या है? Genetically identical है. Genetically you can say very similar to each other. Genetically identical plants, and this genetically identical plants means these are the clones of parent plants. Okay? So what is vegetative propagation? Vegetative propagation or vegetative reproduction in higher plant is basically a type of asexual reproduction in that new plants are produced with the help of stem, roots and leaves. Okay? And all the plants which are produced out of this root, out of this stem, out of these leaves are identical or close. Vegetative production में क्या किया जाता है? स्टेम, रूट और लीव्स के सहारे नए प्लांट तैयार किए जाते हैं. लीव्स, रूट उसका यूज करके नए प्लांट किए जाते हैं. उसको हम बोलते हैं asexual reproduction in higher plants. And these plants which are produced from leaves, root and stem, जो इससे बनाए जाते हैं, these are exactly identical. ये पेरेंट के जैसे दिखाई देते हैं, exactly जेनेटिकली पेरेंट के सरीके होते हैं, उनके जैसे होते हैं. एंड दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं क्लोन्स. सो ये सब पेरेंट्स के क्लोन्स रहेंगे, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. ओके, दिस इज व्हाट द वेजिटेटिव propagation or vegetative reproduction in plant. Propagation from different parts of the plant, and these different parts may be stem, root and leaves. ये तीनों यूज करके हम क्या कर सकते हैं? नए प्लांट तैयार कर सकते हैं. Okay? And these are what? Very similar or identical to the parent plant. Okay? Now vegetative propagation can be of two different types. एक तो natural vegetative propagation होता है और दूसरा artificial. ये natural vegetative propagation में क्या होगा? Natural vegetative propagation में क्या होगा? We can make use of root, plant के root use कर सकते हैं. We can make use of stem, plant के stem use कर सकते हैं. We can make use of leaf, plant के leaf use कर सकते हैं. So leaves, stems और root को यूज करके हम नए प्लांट तैयार कर सकते हैं. दैट इज व्हाट? नेचुरल वे ऑफ प्रोपगेशन. प्लांट्स में एक नेचुरल वे है, नेचुरली हम लोग उनको तैयार कर सकते हैं. नैसर्गिक हम उसको प्रकृति के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार कर सकते हैं. और प्लांट ने ये नया प्लांट तैयार करने का उनका एक तरीका है, asexual reproduction in higher plants. बट कभी कभी ह्यूमन ने क्या किया? उसमें इंटरफेयर किया एंड
they tried, humans might have tried the part of root or part of stem or part of leaf, और उसको प्लांट से अलग करके जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर करके नए प्लांट बना सकते हैं. एंड अगेन द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर, इससे जो हम प्लांट बनाते दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू, और कैन से एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स. ये भी पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं. दीज आर ऑल्सो द क्लोन्स ऑफ पेरेंट प्लांट. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आर्टिफिशियल वे. नेचुरली इसको नहीं बनाया जाता, आर्टिफिशियली ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें होता है, ह्यूमन का हाथ होता है, हम उसको तैयार करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. इसमें कोई नेचुरल प्रोपोग्यूल यूज नहीं किया जाता जिससे प्लांट बनते. कोई भी प्लांट का पार्ट जिसको कट करके, जैसे स्टेम होता है या रूट होता है या लीव्स होंगे, उसको हम कट करेंगे और प्लांट बना सकते हैं. ग्राफ्टिंग करेंगे मीन्स वी कैन कंबाइन टू प्लांट्स टुगेदर, और ग्राफ्ट करेंगे या बर्ड ग्राफ्ट करके भी कर सकते हैं, या टिश्यू कल्चर एक एडवांस टेक्निक, आर्टिफिशियल कंडीशन में उसको ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से. अंडर असेप्टिक कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन में हम उसको ग्रो करेंगे, इसको हम टिश्यू कल्चर के सहारे भी कर सकते हैं. सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ vegetative propagation. One is natural and the second one is artificial. Now we'll see first the natural way of vegetative propagation, and this is the first example that we want to see. Plants can produce vegetatively through their roots by forming adventitious bud. Plant के root जिससे adventitious bud तैयार होते हैं, and from that adventitious bud नए plant बन जाते हैं. For example, in sweet potato or radish, what you can see in sweet potato, the adventitious buds होते हैं, ये adventitious buds which are produced on the root itself. ये जो sweet potato के root है, इस root पे adventitious buds तैयार होते हैं, and these buds can develop into new plant. ये नए plant में develop हो जाते हैं. Correct? So this is the way by which new plants are produced. Here you can see this is the sweet potato, natural can say photograph है, और उसके बर्ड से adventitious बर्ड से नया प्लांट डेवलप हो चुका है. So plants can produce vegetatively through their roots. रूट के सहारे नए बर्ड्स तैयार होते, उनको हम बोलते हैं adventitious bird. ये कौन से बर्ड्स है? adventitious bird. And these adventitious bird under favorable condition can grow into new plant. Example इसमें क्या क्या दिया है? Sweet potato is the best example. Radish is also another example. Carrot is also another example. In sweet potato, you can see development of adventitious bud on the tuberous root. ये tuberous root होते हैं उसके. These are tuberous root. Root है, tuberous है. They can store food material in the form of starch and all, and that's why these are what enlarged underground part, or can say the root part. जमीन के नीचे होते हैं, और रूट का पार्ट होता है. सम पार्ट ऑफ दैट रूट कैन से अकोमुलेट फूड मटेरियल अकोमुलेट करता है, उसमें फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है और वो एनलार्ज होता है. ऐसे रूट पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होते, एंड दिस एडवेंटिशियस बर्ड्स लेटर ऑन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन. कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए. अंडर फेवरेबल कंडीशन दिस एडवेंटिशियस बर्ड्स can develop into new plant. So sweet potato are generally propagated by root, and these roots they have adventitious buds, and these buds under favorable condition can grow into new plant. The same can be a case in radish or carrot. So another example of vegetative propagation, natural way ने एक नया और example मैं आपको बताने जा रहा हूँ. Vegetative propagation by stem. स्टेम के सहारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या क्या है इसमें? सी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ट्यूबर. ये क्या है? ट्यूबर. सो ट्यूबर्स आर बेसिकली व्हाट? ट्यूबर्स आर स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम. ये क्या है? एक स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम्स है. ये स्टेम्स क्या होते हैं? दिस आर स्पेसिफिकली मॉडिफाइड स्टेम पार्ट फॉर स्टोरेज of food. This is generally called storage organ. इस पोटैटो है क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है. सो
These tubers contain buds which grow into new plant. इस पे क्या होते हैं? Buds होते हैं. See here, so this is one of the bud. ये दूसरा bud है. This also तीसरा bud. ये चौथा. Can say these are the buds, and when they get favorable condition, these buds will can say develop or sprout into a new plant. Here you can see the buds which are sprouting, and one of the bud can say has developed into can say plantlet. Now ये shoot हुआ, उसके बाद उसको roots आ जाएंगे. So that's why you can say potato are cut into different pieces. Each piece is having one bud, one eye, and that is developing into new plant. वो क्या होता है? नए plant में develop हो जाता है. So tubers are what? Basically tubers are swollen underground stem. ये क्या है? Underground stem है. These are what? Modified stem used to store food material. That's what is called storage organ. And these tubers contain buds which grow into new plant. ये क्या है? ट्यूबर के ऊपर बर्ड्स होते हैं एंड दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. बेस्ट एग्जांपल क्या है? पोटैटो. हम जो पोटैटो खाते हैं बारिश के दिनों में आपको दिखा देता है. कभी कभी पोटैटो ज़्यादा दिन हम लोगों ने ऐसे बास्केट में रखा है या कोई हम लोगों ने कटोरी में रखा है, उसको मॉइस्चर मिल जाता है बारिश के दिनों में, उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं. सो दीज आर बेसिकली न्यू ग्रोथ ऑन द पोटैटो फ्रॉम देयर बर्ड्स. So this is what the tubers, swollen underground stem, which can grow into new plants with help of their buds, and that's why it is called a propagation by stem. So potato हम लोग grow करते हैं seed से नहीं, तो हम करते हैं tuber से. Now next example is rhizome. दूसरा example क्या है? stem का rhizome. Now what are rhizomes basically? Rhizomes क्या होते हैं? Rhizomes are underground horizontal stem. ये क्या है? अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम्स है. हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसी जमीन होती है, जमीन को वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हुए आपको दिखाई देंगे. करेक्ट? ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते एंड यहाँ पर उसको नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. करेक्ट? ये इंटरनोडल पार्ट है एंड दिस इज व्हाट? नोडल पार्ट. इसमें थोड़े से स्केली लीव्स आपको दिखाई देंगे. सी कैन दिस इन दिस. सो दिस आर व्हाट? जमीन को ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको ग्रो होते हुए दिखा देंगे. कैन सी नोड्स ऑन दिस. ये नोड्स इस पे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, और ये नोड्स को आप देख सकते हैं इजीली. इस पे स्केली लीव्स भी है. करेक्ट? एंड एट ईच नोड इट हैज बड. हर एक नोड पे बड होता है. अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ प्लांटलेट. देखो ये बड स्प्राउट हो जाते हैं, छोटा सा शूट सिस्टम डेवलप होता है और बाद में इसको रूटिंग होके एक बड़ा पौधा बन जाता है. ओके? सो व्हाट आर राइजोम्स? राइजोम्स आर अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम्स. दीज आर बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, एंड राइजोम प्रोड्यूसेस न्यू शूट्स एंड रूट. These shoots and roots are produced generally from the bud. एक्सिलरी बड बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये स्टेम है. जैसे जहाँ स्केली लीव्स या लीव्स आपको दिखा देते उसके एक्सिल में बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स स्प्राउट हो जाते हैं एंड जनरली ये राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है. ओके? बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? जिंजर और टर्मरिक. अदरक जिसको हम बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी जिसको बोलते हैं, उसके जो रूट स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, उसको बोलते हैं राइजोम. और वो हल्दी या जिंजर अदरक हम ग्रो करते हैं राइजोम के सहारे. सो दिस इज व्हाट बेसिकली द प्रोपेगल्स which are used, or can say the natural vegetative organs modified for storage of food material. इसमें फूड मटेरियल होता है और अंडर फेवरेबल कंडीशन ये फूड मटेरियल के सहारे स्प्राउट करते हैं अपने बर्ड्स को और नए प्लांट को ग्रो करता है. सो राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर एंड टर्मरिक. और प्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Another example of vegetative stem growth, or can say vegetative reproduction by stem, is bulb. Bulbs हमें दिखाई देते हैं ऑनियन में, टुलिप में. आपने पास देखा होगा ऑनियन इज व्हाट? अंडरग्राउंड स्टेम. ये अगेन क्या है? से अंडरग्राउंड स्टेम विथ फ्लेशी लीव्स.
इसमें क्या होते हैं? सो दीज आर व्हाट? फ्लेशी लीव्स. ये सब फ्लेशी लीव्स है. इसमें क्या है? ऑल दीज आर फ्लेशी लीव्स. एंड उसमें एक कंडेंस्ड स्टेम उसके बेस में होता है. सो दिस इज द स्टेम एंड फ्रॉम दिस स्टेम यू कैन सी रूट प्रोडक्शन. पूरा आपको रूट प्रोडक्शन यहाँ पर दिखा देता है. सेम थिंग यार. सो दिस इज व्हाट कैन से स्केली लीव्स. एंड स्केली लीव्स, फ्लेशी लीव्स, ये जो पूरा फ्लेशी लीव्स एंड स्केली लीव्स होते हैं उसको नीचे आपको स्टेम दिखा देगा. और ये स्टेम को नीचे आपको रूट्स आते हुए दिखा. सो दिस व्हाट कंडेंस्ड स्टेम. अंडरग्राउंड पार्ट, ये पूरा पार्ट अंडरग्राउंड होता है. ये ग्राउंड लेवल होगा तो इसके नीचे ये पार्ट होता है. करेक्ट. इसके नीचे भी पार्ट रहेगा. दिस इज द बल्ब. बल्ब जैसा दिखा देता है. इट इज मेड आउट ऑफ व्हाट? फ्लेशी लीव्स एंड कंडेंस्ड स्टेम. करेक्ट. Underground stem with fleshy leaves is a bulb. Now this underground stem forms new plant under favorable condition. जैसे इसको favorable condition मिल जाती है तो क्या होगा? यहाँ पर उसका जो growing bud होता है, now this growing bud will start producing leaves, और बाद में leaves बड़े बड़े हो जाते हैं. And this is what can say the growth of new plant. Okay? एग्जाम्पल क्या है? ऑनियन, गार्लिक और टूलिप. गार्लिक भी उसका एग्जाम्पल है. ओके. ऑनियन एंड गार्लिक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बल्ब. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टेम प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम इज कॉम्स. ओके. कॉम्स क्या होता है? अगेन दीज आर व्हाट? शॉर्ट, वर्टिकल, swollen underground stem. Short होता है, you can see here. So this is what the underground stem. Short, vertical, जमीन में नीचे vertically grow होते हैं. That's why vertical उसको बोलते हैं. Swollen means वो large हो जाते हैं because of they are accumulating food. ये food accumulate करते हैं. And underground होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं. So they are under the soil surface. Okay. Storage organ है. Birds are formed on comb, grow into new plant. इसके ऊपर ये जो बर्ड दिखा देता है आपको. So this is one of the birds. ये जो बर्ड होता है that can grow into new plant. So ये जो बर्ड है यहाँ पर आपको दिखाई देता है. So this bird will grow into new plant. बाद में इसको नया प्लांट जैसा दिखा जाता है. The best example is कोलोकेशिया, आरम, या हम मराठी में इसको आड़ू बोलते हैं, ग्लैडियोलस. These are the example of combs. So combs are what? Short, vertical, swollen underground stem. छोटे बट swollen, vertically grow होते हैं, यानी जमीन में सीधे नीचे जाता है. ऐसे स्टेम जो स्टोरेज ऑर्गन है, and the birds which are produced on comb can develop into new plant under favorable condition. Condition favorable होना चाहिए. Favorable condition जब जब मिलता है, so ऐसे comb नए प्लांट को जन्म देते हैं. And that is what it is called a natural way of vegetative reproduction. So every plant produced out of this clone are identical to each other. Example क्या है? कोलोकेशिया और ग्लैडियोलस. ये दो इसके examples हैं. Now see next example of vegetative propagation is propagation by leaf. Leaf से propagation हो जाता है कुछ plants में. There are certain plants which can be propagated by leaves. Leaf के सहारे उनका propagation या multiplication किया जाता है vegetatively. So some plants have the ability to produce adventitious bud. कौन से bud? Adventitious bud. Adventitious buds on their leaves. If you see, this is the plant of Bryophyllum. ये Bryophyllum का plant है. इसको हम बोलते हैं पत्थर चिट्टा या पान फूटी in Marathi. And if you see the margins of this leaf, इसके जो margin पे हर एक notch में ये bud दिखा देता है. So these are lateral buds which are produced on the margins. और ये bud जैसे जैसे उनको favorable condition plant के stem से अगर वो detach हो जाता है, कहीं जमीन पर वो गिर गया, वहाँ पर उसको पानी या moisture मिला अच्छी तरह, so that plant part and the leaf part will grow into new plant through its adventitious bud. and ये adventitious bud कहाँ पर है? उसके साइड पे यानी लीफ मार्जिन पे होते हैं.
So these birds develop into new plants under favorable condition. Under favorable condition उनको अच्छी condition मिल जाती है, तो अच्छे condition में उनको क्या चांस मिल जाता है नया प्लांट डेवलप करेगा. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम, जिसको हम बोलते हैं पानफूटी या पत्थर चिट्टा बोलते हैं. सो ये पानफूटी इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसके लीव्स के सहारे नए प्लांट बनाए जाते हैं. ओके, so maybe from one leaf we can have 1 2 3 4 5, like can say 7 8 or maybe more than 20 plants or 60 plants can be produced from a single leaf. So the number of buds which are available, adventitious bud which are available on the margin of this leaf can be developed into, can say, new plant. So vegetative propagation by leaf, leaf के सहारे vegetative propagation, and these plants are produced from adventitious bud. कहाँ से होते हैं? adventitious bud से तैयार होता है. कहाँ पर होते हैं bud? लीफ के इस साइड पर, यहाँ पर आप देखिए इधर इधर होते हैं adventitious bud. और ये birds जैसे यहाँ पर दिखाई देता है, these birds are produced in new plant, ये नए प्लांट तैयार करते हैं. और ये this is the mother plant, और इसके जैसे प्लांट ये तैयार हो जाएंगे. Okay, example is bryophyllum. Example is what? Bryophyllum. So we have seen vegetative propagation, natural way ने जो natural way होता है vegetative propagation का, इस natural way से जितने भी vegetative propagation होते हैं that we have seen, and I have made the chart for this natural vegetative propagation. आपको ध्यान में रखने के लिए, this is what can say best we can remind it later on also. आप ये lecture बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें क्या है. So root का example is sweet potato or radish. So this is the sweet potato. हम इसको क्या बोलते हैं? sweet potato, शक्करकंद, या maybe can say in Marathi रताड़ी. So the adventitious buds which are produced on the root, ये जो storage part है उससे हम देखते हैं कि नए plant तैयार होते हैं. Now there are 4 different examples that we have seen in stem. So modified stem which are used for propagation. Stem में पहले हम लोगों ने देखा bulb, then देखा corm, then देखा tuber and rhizome. So if you see tuber, bulb, rhizome, corm. So bulb का example है onion, corm का example है colocasia, आलू, tuber का example है potato, and rhizome का example we have seen so ginger. So ginger, potato, then the corm का example colocasia, and bulb का example है हमारा onion और garlic. और लास्ट में हम लोगों ने देखा leaf, and leaves are used for propagation. So the best example for propagation by leaf is bryophyllum. Bryophyllum उसका example है. Okay? So this is what natural vegetative propagation. ये क्या है? Natural vegetative propagation है. So by root हो सकता है. Sweet potato is example for that. By stem, जैसे modified stem होते हैं bulb, corm, tuber, or you can say rhizome. ये सब modified stem है. Mostly all these stems are grown under soil surface, and they are what swollen parts of the stem specifically modified for storage of food material. उसके ऊपर जो adventitious buds होते हैं या lateral buds होते हैं उससे क्या होगा? propagation और multiplication हो जाता है. Okay? Now artificial vegetative propagation ये next part है. दूसरा artificially जहाँ पर natural मेथड नहीं यूज किया जाता, ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का पार्ट कट करके उसको कहीं और जाके लगा देते हैं और उससे प्लांट बनता है. सो नेचुरली ये होता नहीं, बट आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है, किया जाता है. हमारा एक इसमें हाथ होता है, इंटरफेरेंस होता है. सो ह्यूमंस हैव डेवलप्ड सर्टेन सिस्टम और कैन से मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन. दीज आर ऑल taken under artificial vegetative propagation. ये सब artificial vegetative propagation के अंडर किया गया उनको. तो उसमें क्या है? कटिंग, दूसरा क्या है? ग्राफ्टिंग, और तीसरा टिश्यू कल्चर. एडवांस मेथड है टिश्यू कल्चर. ग्राफ्टिंग भी है और कटिंग भी है.
कटिंग कैन बी अब 3 डिफरेंट टाइप्स के कटिंग होते हैं, जैसे स्टेम कटिंग भी यूज किए थे, स्टेम से जो कटिंग बनाते हैं तो स्टेम कटिंग बोलते हैं, लीफ हम यूज करते हैं तो लीफ कटिंग बोलते हैं, जब हम रूट यूज करते हैं फॉर प्रोपगेशन तो रूट कटिंग. सो कटिंग मेड आउट ऑफ स्टेम और स्टेम कटिंग, द कटिंग्स विच आर मेड आउट ऑफ लीव्स लीफ कटिंग, एंड कटिंग्स विच आर मेड आउट ऑफ कैन से रूट, उसको रूट कटिंग बोलते हैं. विल सी वन बाय वन अगेन. ग्राफ्टिंग में ग्राफ्टिंग होता है, इसमें भी अप्रोच ग्राफ्टिंग, दो प्लांट को एक साथ जोड़ा जाता है. बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड को डिटैच करके दूसरे प्लांट पे लगाया जाता है, बर्ड ग्राफ्टिंग. और टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में सिंगल सेल और टिश्यू ऑफ द प्लांट कैन बी ग्रोन और कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन और प्रोपगेशन अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. नेचुरल वे में नहीं तो आर्टिफिशियल कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है. ओके, नाउ विल सी वन बाय वन ऑल दिस. द फर्स्ट वन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला हम देखते हैं कटिंग. सो व्हाट आर कटिंग्स? दिस इज व्हाट part of root, part of stem or part of can say leaves are separated from the plant and these are used for propagation. So parts of stem, parts of leaves, parts of root are cut and used to grow into a new plant. क्या किया जाता है, नए प्लांट को ग्रो करने में या नए प्लांट तैयार करने में उनका यूज किया जाता है. So first we'll see stem cutting. स्टेम कटिंग जनरली किया जाता है रोजेस में या ग्रेस. बेसिकली इन स्टेम कटिंग मैच्योर्ड स्टेम यू हैव टू टेक, एक मैच्योर स्टेम होता है. दिस मैच्योर स्टेम्स यू हैव टू कट फ्रॉम द प्लांट. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम, ये स्टेम हम लोगों ने लिया है, इसमें नोड्स दिखाई देते हैं आपको, देखो नोड्स, एंड दो नोड के बीच में होता है इंटरनोड. ये है हमारा इंटरनोड, और ये रहा नोड, ये भी एक नोड है. एंड एट ईच नोड यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ लीफ. इसमें लीव्स होते हैं और इसके एक्सियल में क्या होता है, एक बड होता है. सो यू हैव टू टेक मैच्योर पार्ट ऑफ द स्टेम, में बी ट्विग आप ले लीजिए, एटलीस्ट पेंसिल थिकनेस, और उसमें कितने, जब आप कट करते हैं उसमें कितने, मिनिमम 2 या 3 बड होने चाहिए, 2 या 3 बड होने चाहिए, मिनिमम 1 2 3. अगर लीव्स अल्टरनेट है तो लीव के एक्सियल में यहाँ पर बड होगा, दूसरा या तीसरा. सो दिस में बी कैन से अबाउट कैन से 10 to कैन से 20 सेंटीमीटर लंबाई हो सकती है. नाउ दिस lateral buds later on can say sprouted under favorable condition, और उनको और ग्रोथ में कन्वर्ट करके आप पूरा प्लांट बना सकते हैं. सो दिस कटिंग्स आर पुट इनटू द सॉइल. इसको हम लोग पॉट में लगा देंगे, ऐसे पॉट में लगा दिया, उसमें क्या होगा, पानी डालने के बाद उसको रूट्स आ जाते हैं, एंड यू कैन सी द रूट डेवलपमेंट एट द कट पोर्शन. उसको स्लैंटिंग कट किया जाता है, ऊपर का कट ए हॉरिजॉन्टल होता है. क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी का लॉस होना नहीं चाहिए. ओके, सो ऐसे कटिंग पॉट या पॉलीथीन बैग में मिट्टी में लगा देंगे, उसमें आप थोड़ा सा उसको खाद डालेंगे तो डेफिनेटली अंडर मॉइस्ट कंडीशन इसको रूट आ जाते हैं एंड कैन डेवलप इनटू एंटायर न्यू प्लांट. सो दिस कैन से पार्ट ऑफ स्टेम कटिंग. स्टेम से बनाया जाता है इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टेम कटिंग. करेक्ट. रोजेस में किया जाता है, ग्रेप्स में किया जाता है, शुगर केन में. सो रोजेस कैन बी कैन से कल्टिवेटेड और प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग. ग्रेप, अनार जिसको हम बोलते हैं, ये भी स्टेम कटिंग से किया जाता है. यू माइट हैव सीन, आपने शुगर केन का देखो प्रोपगेशन जो देखा होगा, वो भी स्टेम कटिंग से होता है. सो देयर आर मेनी प्लांट्स विच आर प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग. And the best example is rose or grapes also. Okay, so part of the stem is cut and used to propagate or can say used to produce new plant. Rooting और shooting दोनों उसमें आ जाता है. Okay, दूसरा एग्जाम्पल हमें लेना है लीफ कटिंग. सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लीफ कटिंग एग्जाम्पल है सेंसिवेरिया. उसका एग्जाम्पल क्या है, सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट. सो दिस इज द स्नेक प्लांट. ये स्नेक प्लांट इंडोर प्लांट है, उसको
अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो ज़्यादा स्प्राउट होता है। इफ़ यू टेक अ पार्ट ऑफ लीफ, इसका एक पार्ट अगर हम लोगों ने लिया लीफ, एंड इफ यू पुट इट इन सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में हम लोगों ने इसको लगा दिया, मे बी आफ्टर सम टाइम वी कैन सी रूट प्रोडक्शन इन दिस, इसमें रूट्स आ जाते हैं, करेक्ट, रूट्स आ जाते हैं, एंड यू कैन सी द बड डेवलपमेंट, वहाँ पे शूट सिस्टम भी हो जाता है, एंड फ्रॉम यू कैन सी लीफ यू कैन सी डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट, ये पूरा प्लांट इसमें तैयार होते आपको दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट लीफ कटिंग is one of the ways of propagation of plant। ये आर्टिफिशियल वे, लीफ को आप लोगों ने क्या किया है, डिटैच किया है प्लांट से, उसको एक सूटेबल मीडियम में रखा है, इट में भी सॉइल, सॉइल जैसे मीडियम इसमें है, और उसको पानी या मॉइस्चर देने के बाद उसमें फूड मटेरियल होता है, दैट फूड मटेरियल इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम। तो रूट और शूट दोनों डेवलप हुए और प्लांट यहाँ पर एक तैयार हो चुका है। So this is what the can say method of propagation by leaf। okay, आगे हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट कटिंग। रूट कटिंग से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग कर सकते हैं। सो रूट कटिंग क्या होता है, यू हैव टू टेक पार्ट ऑफ द रूट, रूट का पार्ट कट करो, एंड यू कैन टेक दैट पार्ट ऑफ रूट, एक थोड़ा पार्ट में भी कैन से 4 और 5 इंच का पार्ट आप लेते हैं, एंड इफ यू पुट इट इन सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, खाद के साथ अगर उसको लगा देंगे तो डेफिनेटली दैट रूट विल डेवलप बर्ड्स, एंड दैट बर्ड विल स्प्राउट इनटू कैन से शूट सिस्टम, और उसका और रूट आ जाता है, एंड देन एंटायर प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। इन दिस फिगर यू कैन से सपोज दिस द प्लांट, उसका रूट का पार्ट थोड़ा निकाल के अगर हम लोग उसको लगा देंगे सॉइल में, सो दिस इज व्हाट द रूट पार्ट जो इसमें लगाया था, दिस रूट पार्ट, इससे आप देखें प्लांट तैयार हो जाता है, रूट सिस्टम भी आ जाती है। सो दिस वे नया प्लांट तैयार हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल क्या, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी में रूट कटिंग किया जाता है। सो ब्लैकबेरीज आर प्रोपोगेटेड बाय रूट कटिंग। एग्जाम्पल ब्लैकबेरी प्रोपोगेशन बाय रूट। ओके, now next method is what, vegetative propagation by grafting। ये वन मोर मेथड जो आर्टिफिशियल मेथड है जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग से भी हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन करने के लिए ग्राफ्ट करना जरूरी होता है। नाउ व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इज बेसिकली जॉइनिंग अप टू पार्ट्स फ्रॉम टू प्लांट्स। दो प्लांट, एक नहीं तो किसमें चाहिए, इसमें दो प्लांट चाहिए। कितने प्लांट चाहिए आपको? दो प्लांट। सो 2 प्लांट्स आर यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। एक प्लांट जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, रूट स्टॉक बोलते हैं हम उसको। सो 1 प्लांट विच हैज ए गुड रूट सिस्टम, रूट सिस्टम अच्छा मीन्स व्हाट, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो अच्छी तरह ग्रो होना चाहिए। इसको रूट सिस्टम जो पानी एब्सॉर्ब करे, जो अच्छा सा फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करे, और शूट सिस्टम को सपोर्ट करे, जिसमें कोई डिसीज ना हो या डिसीज को रेजिस्टेंट हो, ऐसा रूट स्टॉक। और दूसरा होता है सयान। सियान क्या होता है? ये दिस इज व्हाट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच गिव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स टू यू। अच्छे फ्रूट्स, अच्छे फ्लावर देने वाला ऊपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं सयान, ये ऊपर का पार्ट है। सो 1 प्लांट इज व्हाट हैविंग वेरी गुड सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। ये रहा नंबर 1 प्लांट, समझो रूट स्टॉक। दूसरा एक एरियल पार्ट जिसका बहुत अच्छा है, इज वेरी गुड कैन से फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट, जैसे मैंगो, अल्फांसो के अलग अलग कैन से वैरायटीज भी है। सो अलग अलग मैंगो के वैरायटीज में अच्छे वैरायटी वाला मैंगो हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सियान। ये रहा दूसरा प्लांट। नाउ रूट स्टॉक और ये एरियल पार्ट वाला जो प्लांट है, दोनों को हमें क्या करना है, अप्रोच करना है, दोनों को एक साथ लेके आना है, एंड देन यू हैव टू टाई देम टुगेदर। ऐसे 2 प्लांट ए और बी को मैंने क्या किया, एक साथ लिया, अप्रोच किया, और उसके थोड़ा सा पार्ट कट के एक दूसरे को जोड़ दिया, एंड आई हैव टाइड इट, अच्छी तरह उसको टाई किया है, एक दूसरे को टाई करके उसको बांध के रखा है कुछ दिन। तो क्या होगा, द कैम्बियम
means meristematic tissue of these two plant they can say get approach to one another, और एक दूसरे को अप्रोच होने के बाद एक दूसरे को ज्वाइन हो जाता है। अभी आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या है करना है, रूट पार्ट जो होता है यानी रूट स्टॉक होगा उसका एरियल पार्ट आपको कट कर, बिकॉज उसको अच्छे फ्रूट्स नहीं होंगे बट उसका रूट सिस्टम अच्छा होता है। सो हमें जो रूट सिस्टम चाहिए, ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए। सो व्हाट विल डू, उसका ऊपर का पार्ट, ये रूट का नीचे का पार्ट हमें लेना है, सो नीचे का पार्ट ले लिया यहाँ पर, करेक्ट। ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, उसको कट कर दिया। देन व्हाट वी रिक्वायर, सियॉन का क्या चाहिए, ऊपर का पार्ट चाहिए, नीचे का नहीं चाहिए। वी डोंट वांट रूट सिस्टम ऑफ सियॉन बट वी रिक्वायर एरियल पार्ट, एरियल पार्ट चाहिए तो उसका एरियल पार्ट लिया, करेक्ट। सो सियॉन का एरियल पार्ट लिया, रूट का पार्ट, उसका रूट स्टॉक का पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया, उसका नीचे का पार्ट कट कर दिया। सो हमें क्या रहा अभी, रूट स्टॉक, ये रहा रूट स्टॉक हमारा, क्या है, रूट स्टॉक, ये रूट स्टॉक रहा। रूट स्टॉक बोलते हैं हम इसको, रूट स्टॉक का पार्ट यानी वन प्लांट नंबर 1 जिसका रूट पार्ट हम लोगों ने लिया, ये प्लांट नंबर हमारा 2 है, एरियल पार्ट उसका लिया, करेक्ट। सो दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया। नाउ विल हैव अ कंबाइंड प्लांट विच हैज रूट सिस्टम विथ वेरी गुड क्वालिटी यानी कि स्टर्डी, डिसीज रेजिस्टेंट, कैन एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ऐसे वाला रूट स्टॉक हम लोगों ने लिया और उसके ऊपर क्या किया, ग्राफ्ट किया एरियल वाला पार्ट, एक अच्छा शूट सिस्टम जिसमें अच्छे फ्रूट भी है, ए डिलीशियस फ्रूट, स्वीट, ज़्यादा नंबर में तैयार होने वाले, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला पार्ट, एंड दिस कंबाइंड प्लांट विल हैव कैन से गुड सिस्टम, दैट्स व्हाट रूट सिस्टम, गुड रूट सिस्टम एंड गुड एरियल सिस्टम, दोनों भी अच्छे अभी। नाउ दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई प्लांट्स एंड यू कैन हैव अ क्वालिटी प्लांट बाय ग्राफ्टिंग। इसमें क्या, दो प्लांट को अप्रोच किया जाता है, दो प्लांट को टुगेदर यानी कि एक साथ लिया जाएगा एंड दे कैन ग्रो एज वन प्लांट, दोनों क्या एक एज ए वन प्लांट ग्रो होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इट कैन बी अप्रोच ग्राफ्टिंग, इट कैन गेट टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग, ओके। सो ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्टिंग होते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल लिया अप्रोच ग्राफ्टिंग का। दूसरा भी एक ग्राफ्टिंग है जिसे हम बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पर यू हैव टू कैन से आइसोलेट बर्ड फ्रॉम सयान, ये जो सयान है इसे हम क्या करना है, इससे हम लोगों को बर्ड निकालना है। सो बेस्ट क्वालिटी प्लांट जो होता है, बेस्ट क्वालिटी प्लांट का हम लोगे बर्ड। बेस्ट एग्जांपल इसमें रोजेस में अच्छा फूल देने वाला अगर रोज है हमारे पास, मे बी सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन से येलो रोजेस, तो येलो रोज अगर आपको चाहिए या आपको मे बी कैन से पिंक वाला रोज चाहिए, उसमें अच्छा क्वालिटी वाला जो प्लांट है उसका हम क्या करेंगे, एक बर्ड निकालेंगे। इस जो दिस इज व्हाट बर्ड, एक लीफ के एक्सिल में होता है ये बर्ड, हम उसको निकाल लेते हैं एंड दैट बर्ड आइसोलेटेड फ्रॉम सयान और गुड क्वालिटी प्लांट, बर्ड में सब कुछ कैरेक्टर है, वो हम क्या करते हैं रूट स्टॉक पे हम लोग उसको ग्राफ्ट करेंगे। सो दिस इज हमारा रूट स्टॉक, ये हमारा क्या है, रूट स्टॉक है, करेक्ट। ये रूट स्टॉक या रूट का पार्ट, रूट सिस्टम अच्छी है। सो रूटेड जो नेचुरली फॉरेस्ट में जो रोजेस ग्रो होते हैं वो स्टर्डी होते हैं, उनसे रूट स्टॉक बनाया जाता है। ऐसे रूट स्टॉक को पहले क्या किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कट किया जाता है और इसमें एक वर्टिकल टी शेप्ड कट, और ये फ्लैप ओपन करके उसमें बर्ड फिट आ जाता है। अब बर्ड फिट करने के बाद बर्ड का पार्ट बस रखना है और बाकी पार्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू टाई दिस पार्ट विथ कैन से टेप, पेपर टेप होगा या पॉलीथीन टेप होगा, उसको आपको उससे टाई करना होता है, करेक्ट। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन स्ट्रिप से टाई कर देते हैं। सो एवरी पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट कवर्ड बाय पॉलीथीन पेपर और कैन से टेप। बस ऊपर का पार्ट, बर्ड का पार्ट हम लोग क्या रखेंगे, इसमें खाली रखेंगे और पूरा पार्ट ये क्या किया जाता है, इसे टाई किया जाता है। सो दिस व्हाट पेपर टेप और स्ट्रिप से या पॉलीथीन स्ट्रिप से उसको टाई किया जाएगा ऑल द साइड्स एंड द बर्ड इज केप्ट ओपन फॉर फर्दर ग्रोथ। बर्ड को ओपन रखा ग्रो होने के लिए। नाउ दिस बर्ड विल स्प्राउट, ये पूरा टाई किया हुआ है, ये बर्ड क्या होगा,
स्प्राउट होगा एंड दिस विल डेवलप इनटू कैन से न्यू प्लांट, एंटायरली नया प्लांट उससे बनेगा, करेक्ट। सो इसमें पूरा एक प्लांट बन सकता है। सो यू कैन सी द प्रोडक्शन ऑफ लीफ, करेक्ट। लीफ बन जाएगा एंड दिस विल नाउ ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और इसको हम लोग और बड़ा करेंगे एंड यू कैन सी लेटर ऑन फ्लावर डेवलपमेंट ऑफ दिस। सो बर्ड ग्राफ्टिंग इज बट बेसिकली टेकिंग अ बर्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी प्लांट, आइसोलेटिंग फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, मदर प्लांट से हम उसको निकालेंगे एंड वी हैव टू ग्राफ्ट इट, मीन्स यू हैव टू फिक्स इट ऑन अदर प्लांट, दैट्स व्हाट रूट स्टॉक, जो वाइल्ड का हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उस पर हम लोग उसको ग्राफ्ट करेंगे एंड देन द बर्ड विल स्प्राउट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दैट्स व्हाट बर्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के दो टाइप्स हम लोगों ने देखे, एक है सिंपल ग्राफ्टिंग और कैन से अप्रोच ग्राफ्टिंग, जिसमें दो प्लांट दोनों लाई होते, डिटैच नहीं किया जाता, बस एक दूसरे के सामने लाया जाता है, उनको अप्रोच किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, उसको टाई किया जाता है एंड देन जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो कट किया जाता है। सो एरियल पार्ट एंड रूट स्टॉक को कनेक्ट किया जाता है, एक नया प्लांट बनता है जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और ज़्यादा दिन वो जी पाएगा। ओके, यहाँ पर क्या किया जाएगा, ओनली कैन से बर्ड सेपरेट किया जाता है, अब बर्ड रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट किया जाता है और बर्ड से नया प्लांट बनता है। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कैन से ग्राफ्टिंग अ प्लांट, करेक्ट, यस। ना तीसरा पार्ट ये है माइक्रो प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज बेसिकली कॉल्ड टिश्यू कल्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, करेक्ट। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? A part of plant or tissue or cell from plant is taken and can be grown in a artificial condition, under artificial condition or कैसे under control condition, और in vitro बोलते हैं इसको, in vitro, in vitro means under control condition, control, controlled condition, okay। so बेस्ट एग्जाम्पल्स जिसमें टिश्यू कल्चर किया जाता है, सो बनाना है, शुगर केन है, तुलिप है, डेलिया है, सो देयर आर मेनी प्लांट्स विच कैन बी ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर, करेक्ट ना। अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं बनाना का, ऑर्किड्स भी टिश्यू कल्चर की किया जाता है। ऑर्किड्स आर कैन से हैविंग बेस्ट कैन से क्वालिटी फ्लावर्स जो बुके में यूज होता है। सो सपोज दिस इज अ बनाना प्लांट, इससे अच्छा बनाना प्लांट आपको लगता है कि अच्छा बनाना प्लांट है and that can be propagated. So this is suppose a mother plant, इसके नीचे कुछ सकर्स आ जाते हैं, ऐसे आउटग्रोथ आ जाता है स्टेम पार्ट को एट द बेस, वो नया स्प्राउट होता है, इसको हम बोलते हैं सकर्स। ऐसे सकर्स हम निकालेंगे, उसका जो मेन ग्रोइंग पार्ट है यहाँ पर पूरा ऊपर का पार्ट निकाला जाता है, ऊपर जितने भी कैन से लीव्स होते हैं उसको निकाला जाता है, ओनली इनर पार्ट और इस प्रोटेक्टेड पार्ट जिसमें कोई डिसीज नहीं होता, ऐसा पार्ट निकाला जाता है एंड दैट पार्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन अ कल्चर मीडियम। ये जो कल्चर मीडियम है, क्या किसमें कहा जाएगा, कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, करेक्ट। ये कल्चर मीडियम बॉटल में भरा हुआ है, ये कल्चर मीडियम पे वो रखा जाता है एंड इन दैट कल्चर मीडियम उसमें क्या क्या होगा, उसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के ऊपर वो ग्रो किया जाता है, इसके शूट मल्टीप्लाई किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन जिसमें शूट को रूट भी तैयार किए जाते हैं एंड देन प्रॉपरली रूटेड एंड शूट जिसमें डेवलप हो चुके हैं, ऐसे रूटेड शूट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू कैन से पॉट या पॉलिथीन बैग में डाले जाते हैं, उसको हार्डन किया जाता है, कुछ दिन उसको स्टर्डी बनाया जाता है एंड देन these plants are distributed to farmer. So in India we are propagating banana by tissue culture, even sugar cane में ये किया जाता है। So we have sugar cane propagation by tissue culture. So this is what basically a propagation from a single cell under sterile condition.
आपको पता है कि सेल क्यों ग्रो होगा? बिकॉज एवरी प्लांट सेल हैज कैपेसिटी टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट। जो भी लाइव प्लांट सेल होगा, इट मे बी पार्ट ऑफ रूट, इट मे बी पार्ट ऑफ स्टेम और इट मे बी पार्ट ऑफ लीफ। लीफ, स्टेम, रूट का कोई भी पार्ट जो लाइव है, जिसमें लाइव न्यूक्लियस है, ऐसे सेल्स और टिश्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं नया प्लांट तैयार करना। एक सिंगल प्लांट पूरा जैसे कि वैसा प्लांट तैयार हो जाता है, एंड द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ये जो सेल्स होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी, मीन्स ईच लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन हैव capacity to grow into new plant, and that is why it is called totipotency. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मीन्स कैपेसिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट इनटू न्यू प्लांट। मीन्स एक सेल से रूट सिस्टम भी बन सकता है, शूट सिस्टम भी बन सकता है, दोनों सिस्टम बन सकते हैं अगर उनको हम अच्छी कंडीशन दे तो, अच्छा खाद दे तो। ओके, सो दैट्स अ टोटीपोटेंसी। सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल मीन्स टिश्यू कैन बी रीजनरेटेड इनटू न्यू प्लांट, और उसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी। और ऐसी टोटीपोटेंसी हर एक प्लांट में होती है। इसलिए प्लांट का कोई नोडल सेक्टर मीन्स एक नोड का पार्ट, जिससे इंटरनोड भी थोड़ा कनेक्टेड, जिसमें एक बर्ड या दो बर्ड हो सकता है, ऐसे प्लांट के पार्ट को भी ग्रो किया जा सकता है। मेरिस्टेम यानी अपाइकल मेरिस्टेम को भी किया जा सकता है, रूट को भी या लीफ को भी किया जा सकता है ग्रो। सो अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन बॉटल में या टेस्ट ट्यूब में मीडियम के ऊपर इसको ग्रो किया जाता है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल कंडीशन। सो ग्रोइंग न्यू प्लांट, क्या बोलते हैं उसको? ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सेल्स और टिश्यू इन अ स्टेराइल कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन विट्रो कल्चर और कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में इन विट्रो कल्चर हम लोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन। एक माइक्रो लेवल पे जाके प्रोपगेशन करना, छोटा पार्ट यूज करके प्रोपगेशन करना, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर किया गया। सो दिस इज व्हाट artificial method of propagation, and there are different plants which can be grown with the help of tissue culture, and banana is best example. So we have seen tissue culture also. Now just revise artificial vegetative propagation कैसे किया जाता है? Artificial vegetative propagation can be achieved with help of cutting. Cutting के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे स्टेम से अगर कटिंग बन जाता है उसको हम स्टेम कटिंग बोलते हैं, रोजेस में किया जाता है। लीफ कटिंग सेंसिवेरिया में किया जाता है, रूट कटिंग ब्लैकबेरी में किया जाता है। सो सेम ये जो प्लांट्स है उसमें अगर रूट भी कट किया जाता है, शूट भी कट किए थे, ऐसे भी प्लांट्स है। सो स्टेम कटिंग का बेस्ट एग्जांपल रोज है, लीफ कटिंग का सेंसिवेरिया एंड रूट कटिंग का ब्लैकबेरी। दूसरा मेथड भी है ग्राफ्टिंग, जिसमें दो प्लांट को एक साथ जोड़ा जाता है, एक का नीचे का पार्ट कट किया जाता है, दूसरे का ऊपर का पार्ट। सो रूट स्टॉक अनसयान को जोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो टिपिकल टाइप, अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड को हम लोग निकाल सकते हैं प्लांट से और दूसरे प्लांट पे लगा सकते हैं। रोजेस में किया जाता है, पीएस में किया जाता है, एप्पल में किया जाता है। एंड टिश्यू कल्चर इज बेसिकली फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, एंड बनाना में माइक्रो प्रोपगेशन अच्छी तरह हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से the methods by which we can produce new plants. So what we have seen today in lecture number 2, vegetative propagation is a mode of, can say basically is a way of asexual production in higher plants. In vegetative propagation there are two different methods, natural method and artificial. Naturally plant propagules like, can say, tubers, bulbs, corms, rhizomes are used for propagation, or even can say adventitious buds which are produced by leaf. So leaves को भी use किया जाता है. This is a natural way of propagation. Artificially you can make use of stem cutting, you can make use of, can say, leaf cutting, stem cutting and leaves का cutting करके भी हम plant grow कर सकते हैं.
और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, अप्रोच ग्राफ्टिंग या बर्ड ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट्स में अगर आपको लार्ज स्केल पे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इन छोटे कैसे जगह पे, छोटे जगह पे आर्टिफिशियली अगर उनको ग्रो करना है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ small tissues, apical buds or root or nodes of the plant, and you can have n number of plants out of that under sterile condition, under in vitro condition. So this is what we have seen asexual reproduction part 2, that's what vegetative propagation in plants. Now we will discuss different can say questions on this in next lecture. इसमें जो जो questions आ सकते हैं उसके next lecture में हम लोग discuss करेंगे. But before that, we'll try to complete the remaining part of this chapter. Thank you for listening.